Guys, we'll just start within next 1 minute. We are ready, Ankur. Absolutely. So guys, extremely happy and excited. And I once again welcome each one of you for being there live, for coming on this session. This is going to be a power pack session. A lot of energy is going to be there. And certainly before we begin, I would love to ask each one of you just a couple of questions which are going to be immensely useful for attending this session. And that's what is going to be very powerful for each one of you. Before I start, the first question is, how many of you would love to have, very simple tips to create more cash flow in your business now? If you feel, then that is something, you are definitely attending the right session. And the second very important question is, how many of you want to monitor your cash flow? मतलब कि cash flow इतनी easily monitor हो पाए वो भी आपके fingertips पे. How many of you want that? If the answer to these two questions is yes, then my friends, certainly I welcome each one of you for being there on this session, because this is going to be immensely powerful. And yes, today we have CA Jagmohan Singh with us, and he is a legendary example to unbreak, to unlock this cash flow, the code of your cash flow for your business now. Now, before we begin, I would really like to acknowledge each one of you. We both feel extremely grateful that you all made it. We know that you had a choice, to Netflix or to just laze around on a Sunday evening, but you all made it on this Sunday evening. Thus, we both will make sure that you get the best value of your time and effort invested, my friends. The top three takeaways from this session, this Power Pack session, are gonna be number one, which is the tips to create cash flow. The tips to create cash flow in your business now. That'll be the first takeaway for each one of you. And the second top takeaway, my friends, is going to be that you will be able to monitor your cash flow. Monitor your cash flow in your business at your fingertips, my friend. This is going to be very exciting for you. And last but not the least, the bonus secret is going to be that you will be able to generate more profit. And more profit means more freedom, my friends, in your business, in the hidden areas where probably you must have not gone through. And believe you me, this works phenomenally amazing. Because before we go on further, because since we're going to spend almost an hour together, I would love to introduce Jagmohan with a warm welcome, guys. Just type welcome, and definitely I'm going to introduce Jagmohan with a lot of energy. So Jagmohan is basically, CA Jagmohan Singh is an exemplary expertise in the arena of cash flow management and system setup and finance. He's an eminent author of various books on finance, and he's been a renowned trainer, as we all know, and a leading seminar and a workshop specialist on the financial freedom. He's on a mission to empower a lot of entrepreneurs to get and achieve financial freedom and to increase the cash flow in their business and to increase their net worth. In the last 2 decades, he has developed and implemented many practical financial tools, a lot of gadgets, and he's worked with more than 879 business owners pan-India, and not just in India, but in fact in US as well, in helping them on the financial controls. He's been associated with a lot of various Indian and international universities, offices, and other corporate enterprises. Guys, I'm super excited to bring on Jagmohan right over there in front of you to unlock your cash flow code. I really welcome you, Jagmohan, for being there live with us. Thank you, Ankur. Thank you for your warm welcome. And I'm getting to my heart, and it is really my privilege to share the place with you. I truly appreciate from the depth of my heart the kind of amazing person you are, Ankur, and the way you are adding value in life of people is just marvelous. Guys, before I start talking about anything on cash flow, I truly want to tell the other person who is taking my interview, it is a privilege, Ankur. I would like to introduce you first of all.
Ankur is an entrepreneur, he's an author and a marketer by a passion, and now he's on a mission. You know, he is on a mission to serve 1 lakh business owners to grow their business using nano videos. He successfully runs 2 manufacturing venture. The strength of those manufacturing venture is 250, out of which one venture is under the brand Ecost, which is manufacturing of wood polymers composite product. And he has trained more than 100 entrepreneurs on his nano video blueprint. And the company channel has got a viewership of more than 10 million. And now we will be sharing some insight along with my dear friend and Ankur. Thank you very much for inviting me to share my knowledge that I have gained over a period of last 20 years by practically working with various business owners. Their turnover ranges from 1 crore to 5,000 crore. Wow. God has given you opportunity to really, like, hand by hand, shoulder by shoulder, understanding the problem of the cash flow, taking the company from a difficult situation to a cash rich position. Now I'm on a mission. I'm on a mission to help people to run profitable and cash rich business. Thank you very much. Awesome. And I'm definitely, you know, feeling your energy, the power, the warmth of your mission, Jagmohan. I'm truly privileged to have you. And once again, all the persons, you know, who are attending this, you know, seeing this on live on FB, I'm truly grateful to have you all for being there, for attending this session, for taking out your time, and thus we'll make sure that you get the best value, guys. But before we begin, I would just like to have one essential agreement, you know, very small agreement, that whenever we say you to, you know, type it in the chat box, it does not mean that we want to disturb you or we want to take your time or attention. The only intention is that we want you to take maximum value, and you would get maximum value once you participate more. Right, Jagmohan? What do you feel about it? Absolutely. Your participation brings the energy, and more we participate together as a team, the more value we will take out from this today's session. I agree with you. Awesome, guys. So guys, give a massive round of applause, a virtual round of applause, you know, for Jagmohan to begin up with the first nugget on how can, you know, we get the access to those simple tips to create cash flow in the business. Now over to you, Jagmohan. Cash flow in your business now. Let me share with you 5 tips right away, which are absolutely simple to implement. And the moment you implement these 5 tips in your business, you will start experiencing immediate cash flow in your business. See, the number one is stock. Stock is the gold mine of your business. Lockdown was announced and it 23rd March in India. And even today, we are on 31st May. We are live in front of you. So whatever the knowledge right now I'm sharing with you, this is absolutely current, latest, updated, and absolutely relevant. Within that, the most important aspect is stock. Now, what is in stock? Stock is considered to be a gold mine in your cash flow. On 23rd March, you are having certain amount of stock in your business. If you are into the essential business, you are doing the business regularly. If you got impacted by that lockdown and there is no business taking place in your business, in your working, stock is going to be the pivotal role. I know you are excited, you want to know, you want to understand what exactly is the role of the stock right away. Is this the question going into your mind? Okay, I got it. Customers are not making payments, specifically after the lockdown, but you have stock. Policy number 1. Now, this stock need to be supplied to those customers, like the lockdown is getting open up, previous amount was due from them. Now you make a supply to them and making sure that the previous payment, to the extent the material that you're supplying to them, you receive that. That will bring immediately cash into your business. क्योंकि दोस्तों ऐसा है, sale
कैश फ्लो नहीं है। जब आप सेल कर देते हो उसके बाद एक पेमेंट टर्म्स होती हैं। आप 30 डेज, 90 डेज, 40 डेज, 45 डेज, देखो आज आप जिसको भी बिलिंग करने वाले हो ना, तो उसने क्या बोलना है कि ठीक है आपका मटेरियल आ गया है, हम बिल को प्रोसेस करेंगे, ऑलरेडी आपके साथ पेमेंट टर्म हमारी सेटल्ड है, तो 30 टू 45 दिनों के बाद पेमेंट आएगी, तो आज की डेट में कैश फ्लो कैसे मैनेज होगा। तो यहाँ पर इस स्टॉक को यानी कि गोल्ड माइन को आप कर देना, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको फिनिश में कन्वर्ट करो, और जो फिनिश है उसको आपने इस तरह से एक्सचेंज करके चलना है। स्टॉक के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था, स्टॉक टर्नओवर। आप जरा अपनी बुक्स में कैश फ्लो में देखो कि मेरे टोटल स्टॉक जिस आइटम्स में डील कर रहा हूं कौन सी मेरी फास्ट मूविंग थी, कौन सी मेरी स्लो मूविंग है। देखो अब समय आ गया है, लॉकडाउन अनलॉक हो चुका है 1 जून से, अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब आप जब बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो आपकी पहले से भी स्लो मूविंग आइटम थी ना, जितनी जल्दी हो सके प्राइसिंग की चिंता मत करो, डिस्काउंटिंग की चिंता बिल्कुल भी मत करो, उनको सबसे पहले आपने आउट करना है विद दी अमेजिंग स्ट्रेटेजी। तो वहां से सफिशिएंट आपके पास इन्फ्लो आने वाला है। अब जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं उसके ऊपर आप फोकस करो। अब फास्ट मूविंग गुड्स को भी आप क्या करने वाले हो, 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हो। फास्ट मूविंग के अंदर अब आप देखने वाले हो कि मेरा जीपी मार्जिन किसके अंदर सबसे ज्यादा है, उसके बाद मिडल जीपी मार्जिन कितना है, कम जीपी मार्जिन कितना है। जो चीजें हम पहले अपने बिजी शेड्यूल की वजह से माय डियर फ्रेंड कर नहीं पाते थे, अब समय आ गया है कैश फ्लो के अंदर स्टॉक इक्वल टू गोल्ड माइन, कैसे हम उसको यूटिलाइज करने वाले हैं, इसका 1 रुपया भी हमने खराब नहीं होने देना। और मेरे बड़े सारे दोस्त हैं, मेरे बिजनेस ओनर फ्रेंड हैं, अरे वो एक इफेक्टिव इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे। अभी भी स्टॉक का अंदाजा कैसे लगता है, स्टॉक है, पड़ा हुआ है, बहुत सारा है, कम है, ज्यादा है, अरे बाप रे, अरे माय डियर फ्रेंड, अब ना टेक्नोलॉजी ऐसी पावरफुल तरीके से काम कर रही है, ये कच्चा पक्का सब छोड़ दिया हमने। अब ये मूवमेंट समझ लो लॉकडाउन की हमारे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आई थी। तो स्टॉक गोल्ड माइन को मेंटेन करने के लिए, और देखो सोना जो है, सोना उसको संभाल के रखेंगे ना। अगर आप ज्वेलर को देखेंगे, ज्वेलर तो शाम को जब अपनी शॉप बंद करता है तो वहां जब झाड़ू भी मारते हैं ना, उसकी जो मिट्टी होती है पहले एक छन्नी में जाती है ताकि उसके अंदर से भी कोई गोल्डन नगेट गिर ना गया। अब आप Awesome. देखो आपके केस में क्या है, क्या हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन किए अपने स्टॉक के, नहीं किए, कर लो। ये सबसे बड़ा आज की दिन का पॉइंट होने वाला है कि अभी तो मैंने सिर्फ पहली बात की है। तो डू यू गिव मी अ प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू मेक अ अमेजिंग वे योर स्टॉक, और उसके ऊपर स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करने वाले हैं आप। I promise, Jagmohan, that definitely yes. I think मैं before आगे जाऊं, audience, I want to ask each one of you, how many of you feel, that the stock is actually a gold mine? And if you really feel, type gold mine now. I mean, I personally, I'm going to do that because all these things, even I didn't know, even I did not have an access. Thank you, Jagmohan, for giving this access. Trust me, this is immensely powerful. मतलब जो वैल्यू मुझे नहीं पता पूरे सेशन में कितनी आप देने वाले हो, बट आई थिंक जो आपने पहला ही पॉइंट बोला ना, दिस इज एक्चुअली अ गोल्ड माइन। अमेजिंग, ओवर टू यू। आई एम कमिटेड। सेकंड, कैश फ्लो जनरेट करना है। कैश फ्लो जनरेट करने के लिए दूसरा पॉइंट आप नोट कर लो, पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म आपकी जो कुछ भी थी ना, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई मेरी पेमेंट टर्म एडवांस है, 30 डेज है, 90 डेज है, 60 डेज है, मैं उस पर स्ट्रगल कर रहा था, मेरे सप्लायर मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अरे पूरी इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के वेंडर जो है इस समय तैयार बैठे हैं आपकी पेमेंट टर्म के हिसाब से काम करने के लिए। पेमेंट टर्म का क्या मतलब होता है, जब हमने किसी को गुड सप्लाई कर दी, अगर उसको 90 डेज की पेमेंट टर्म पे गुड सप्लाई कर दी तो पैसा तो 90 डेज के बाद आएगा। तो मेरे बुक्स में कैश फ्लो कैसे जनरेट होगा, नहीं जनरेट हो पाएगा। सेल मैं पहले ही बता चुका हूं इज नॉट इक्वल टू कैश। अब पेमेंट टर्म करनी है। अब आज की डेट में जितने भी कस्टमर को आप माल सप्लाई करते हो उनके साथ में, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया कि स्टॉक सप्लाई करके इमीडिएट पेमेंट लोगे, और फर्दर जो उनको सप्लाई जाने वाली है, अब आप चूजी बन जाओ कौन कौन से आपके कस्टमर है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। इसको मैंने नाम दिया है आइडियल क्लाइंट। एक बार पेपर पेन लेके आइडियल क्लाइंट बनाओ तो सही, मार्केट में ढूंढो तो सही।
आज की डेट में जिसको आपने बेचना है और जिससे आपने खरीदना है, पूरी मार्केट खुली हुई है, तो पेमेंट टर्म अपनी एकदम सही कर लो, क्योंकि कैश फ्लो सारा पेमेंट टर्म के अंदर है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर, अगर आप परचेज करते हैं 3 महीने के क्रेडिट पे, कम कर लो, 1 महीने के क्रेडिट पे आपने परचेज किया और सेल कर दिया उसको एडवांस के अंदर, तो 1 महीने के लिए सफिशिएंट फंड आपके पास अवेलेबल रहेगा। अगर रिवर्स कर देंगे तो हमेशा कैश फ्लो की दिक्कत बनी रहेगी। तो आज की इस सेशन के अंदर और कुछ नहीं, तो एक बार आपने सभी कस्टमर का नाम लिखना है जिसको आप माल सप्लाई करते हैं। दूसरा, जिनसे आप माल परचेज करते हैं उनका नाम लिखना है। कितने अमाउंट तक की लिमिट का आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और क्या उनके साथ पेमेंट टर्म है, उसको आपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट कर लेना है। मैं बार बार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात क्यों करता हूँ, पिछले स्टॉक में मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री का स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना, अभी बोल रहा हूँ पेमेंट टर्म अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कर लेना, क्योंकि दिमाग में याद नहीं रखा जा सकता। जितने भी सिस्टम्स एंड कंट्रोल हैं इफेक्टिव कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए, वो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होने चाहिए, और आज की डेट में वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। यानी कि आप क्या करने वाले हैं, पेमेंट टर्म्स को डिफाइन करके उसको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप डॉक्यूमेंट करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही अब आप कैश फ्लो को मैनेज करने वाले हैं। द मोमेंट यू विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, आपको पता लग जाएगा कि अगर आप 100 क्लाइंट में से डील कर रहे थे, तो वो 20 क्लाइंट ही ऐसे थे जो आपको 80% रेवेन्यू दे रहे थे। अब समय आ गया है 80-20 के हिसाब से उन 20 पे फोकस करो। अब बाकी 80s की जगह मार्केट खुल गई है, अपनी पेमेंट टर्म के हिसाब से सर्च करो। अभी तो ना गुड़ आपके पास है, और चारों तरफ से कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सकते हो विद योर अमेजिंग स्ट्रेटेजी। एंड डू यू नो वो अमेजिंग स्ट्रेटेजी आपसे कौन शेयर करने वाला है, इसी सेशन में शेयर करने वाला है। सो ब्लेस्ड टू हैव अंकुर विद अस। मेरे से ना कैश फ्लो के ये पॉइंट समझ लो, सेल तो ऐसे खींच के ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे तो और जगमोहन, आई थिंक द वे यू डन कैश फ्लो, आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कैश फ्लो नहीं और सेल्स का सेशन ज्यादा अटेंड कर रहा हूँ, बिकॉज प्रैक्टिकल टिप्स जो आप दे रहे हो ना, ऑन ऑन एक्चुअली नॉट जस्ट हैविंग अ कस्टमर, बट कस्टमर हु विल गिव यू कैश एंड प्रॉफिट। और इस पेंडेमिक टाइम में आपको कस्टमर से ज्यादा एक चीज है जो प्रॉफिट और कैश कैश फ्लो देते, यही चाहिए, और आप बिल्कुल बैंग ऑन उसी पे अटैक कर रहे हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। ऑसम, इट इज गोइंग इन द एब्सोल्युटली राइट फ्लो। एब्सोल्युटली अंकुर, क्योंकि मैं जितने बिजनेस ओनर के साथ में डील कर रहा हूँ 20 साल के एक्सपीरियंस में, मुझे रोज ही फोन आते हैं और सुबह 9 से लेके शाम को 8-9 बजे तक मेरी कम्युनिकेशन चल रही है। एंड यू बिजनेस ओनर, लाइक आई रिलेट विद यू एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी एस्पेक्ट आई रिलेट विद यू। आओ, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता, मैं थर्ड पॉइंट के ऊपर आता हूँ। माई थर्ड पॉइंट इज बजट। लिख लो, बजट। बजट मतलब, देखो कैश फ्लो ना पॉसिबल ही नहीं है अगर आपने पहले से बजट नहीं बनाया हुआ। लोग कहते हैं कैश फ्लो मैनेज नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा पैसा कहां से आता है कहां चला जाता है। अरे समझ तो तब आएगा ना जब हम किसी चीज को किसी पैरामीटर से कंपेयर करेंगे। मैंने बोला 34, इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, 34 मार्क्स थे 100 में से, अब जिसके 34 आए हैं और 33 या 32 आते वो फेल हो जाता, 34 आगे पास हो गया। अब उसको बजट पैरामीटर से आया। अब एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे 93 आएंगे, उसके 34 आए, वो रो पड़ा। अब जिसको उम्मीद थी कि मैं फेल हो जाऊंगा, 34 आगे, वो खुश है। सेम नंबर माय डियर फ्रेंड, कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए आज ही फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 हम एक पूरा बजट बना लेंगे कि मैं कितने रुपए की सेल करने वाला हूं, क्या उसकी कॉस्ट होने वाली है, क्या उसके नीचे खर्चे होने की संभावना है। और वो भी ऐसे नहीं बनेंगे, 4 केस सिनेरियो के अंदर। कौन कौन से? पहला, बेस्ट केस सिनेरियो, दैट मीन टू से कि अगर सब कुछ बढ़िया चला और मैंने रिकवर कर लिया और मैं पिछली बार से भी ज्यादा सेल करने में सक्षम हो पाऊंगा, जिस तरह के ट्रेनिंग कोर्सेस आप अटेंड कर रहे हैं, जितनी मेहनत, लगन और लॉकडाउन में जो आपने लर्निंग की है, उससे आप बेस्ट केस सिनेरियो में जा सकते हैं। सेकंड क्या था? नॉर्मल केस सिनेरियो। थर्ड क्या है? बैड केस सिनेरियो। फोर्थ क्या है? वर्स्ट केस सिनेरियो। मैं कहता हूं वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं आएगा, बैड केस सिनेरियो नहीं होएगा, नॉर्मल रहेगा या बेस्ट आएगा, लेकिन प्लान तो कर लेना चाहिए। अगर हमने उसको प्लान कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको डाल दिया, तो
कैश फ्लो के अंदर आप देख पाएंगे कि मेरा कैश फ्लो हमेशा कंट्रोल में है। वो कैसे? लोग मशीन खरीद लेते हैं, थोड़ा सा बिजनेस चला, एक नई मशीन खरीद ली। अरे क्यों खरीद ली? वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपके प्लान के अंदर था ही नहीं। इतनी सी सेल बढ़ने से आपने नई मशीन कर ली, उसका प्लान नहीं था, सारा कैश फ्लो चौपट हो गया। तभी कई बार प्रॉफिटेबल बिजनेस भी डाउन हो जाते हैं और लॉस मेकिंग किसी तरीके से सरवाइव करते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो बजट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर योर कैश फ्लो मैनेजमेंट। बजट को लेके ना, मतलब जो मेरी मास्टर क्लास रहती है, जो कि फुल डे की एक सेमिनार रहता है, तो कभी मौका मिला तो मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा उसका। अगर आप कहेंगे तो आज भी शेयर करूंगा एक मास्टर क्लास का। तो उसके अंदर हम काफी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग यू अंडरस्टैंड, यू आर द मास्टर ऑफ बजट। I think before I go, Jagmohan, I would really like to say, I remember almost like 1.5 year back when, I contacted you. So you guided me with one thing कि अंकुर अगर एक चीज मैनेज कर लोगे ना, मुझे बड़े अच्छे से याद है, कैश फ्लो और फाइनेंशियल समरी और बजट अपना बना लोगे, that will be phenomenal thing. And believe you me, अभी भी हमारे यहाँ पे बजट बनता है. It's been almost 1.5 year. अब हम लोग सैप पे हैं. जब हमने स्टार्ट किया था, I remember we were on absolutely on busy, और busy से सैप में आपने हमारी बहुत हेल्प करी थी almost like 1.5-2 years back. And I still remember that budget is the thing which is helping our company to sustain even in these times when बहुत हर चीज की अप डाउन है, but still guys, budget is something which is very important. ये बहुत important takeaway है. And how many of you really are going to implement that? That is something important. If you're going to implement that, then type implement, because then only you're going to implement. अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ये ठान लो, सोच लो. मुझे याद है आज से 1.5 साल पहले जब मैं जगमोहन जी से मिला था, मुझे नहीं आता था बजट कैसे बनना है, बट ही रियली हेल्प्ड मी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से exactly, because once you will implement, once you will start considering it in your brain, then only you will start attracting the right knowledge, the right people, the right systems. And believe you me, एक बार अगर आपका बजट स्ट्रांग हो गया ना, आपकी कंपनी को कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल कैश रिच होने से. राइट जगमोहन? Absolutely. To run a profitable and cash rich business, you need to have a budget, and that budget will actually drive your company to your desired goal. Awesome. Got it. So now let me come to the fourth aspect. The fourth aspect is long term versus short term. आप मुस्कुरा रहे हैं, ये मैं क्या बात कर रहा हूं? लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म बात हो रही है कैश फ्लो की, और हम बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म. दोस्तों, कैश फ्लो को मैनेज करने का सबसे बड़ा एक टूल जो है, वो दिमाग में डिस्टिंक्शन क्लियर होनी चाहिए. अब आपको मैं क्विकली आपके माइंड के अंदर परमानेंटली इंस्टॉल करने जा रहा हूं. सो आर यू रेडी to understand the distinction which I'm going to share, and which is going to transform the way you manage the cash flow? If you are ready, please type ready in the chat box. Wow, awesome, phenomenal. This is purely an energetic session, Jagmohan, and we are loving. I mean, I'm loving the energy of everyone. All those who are here, they are just truly awesome being, and it's phenomenal. Thank you. I'm truly appreciate your participation, and that gives a lots of energy and the expectation with which you are. So long term, क्या हुआ? बिजनेस ने थोड़ा थोड़ा अच्छा करना शुरू किया, कस्टमर से पेमेंट आ गई, तो हमने उससे प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली. एक बड़ी मशीन खरीद ली 1 करोड़ रुपए की, अगर कोई प्रिंटिंग का काम करता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब उससे क्या हुआ? जो कलेक्शन कस्टमर से आती है ना, वो आपकी वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है, यानी कि वो शॉर्ट टर्म फंड है. और जो आपकी मशीनरी होती है, वो लॉन्ग टर्म फंड होता है. वहां पर आपने लगा दिया. जब आपने वो पैसा शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म के अंदर इस्तेमाल कर लिया, तो डे टू डे बिजनेस मैनेज करने के लिए पैसे बचे क्या? नहीं. सैलरी डिले हो गई, पार्टियों से परचेज कर लिया, वो फोन कर रहे हैं पेमेंट करो, उनको नहीं कर पा रहे. मार्केट में क्रेडिबिलिटी की हालत खराब हो रही है, बैंकों के अकाउंट एनपीए के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, जबकि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रोडक्ट आपका अमेजिंग है, मार्केटिंग टॉप है, कस्टमर लाइन लगा के आपके दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कहाँ यूज हो गया? लॉन्ग टर्म के अंदर. तो वहां पे बिजनेस कैश फ्लो पूरा का पूरा हिल गया.
कुछ लोगों को मैंने देखा है कि थोड़ा सा बिजनेस के अंदर बढ़ावा आया, बैंक की ओटीसीसी लिमिट में से पैसे दिए, बयाना किया और प्रॉपर्टी खरीद ली, बढ़िया सा घर बना लिया, एक फैक्ट्री परचेज कर ली, उसके बाद बिजनेस जैसे खरीदी थी वैसे बढ़ाम से नीचे आ गया। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से मिक्स नहीं करना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से मिक्स नहीं करना। तो फिर क्या करें? देखो ऐसा है, जब आपको कस्टमर ने पैसे दिए, उसको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर लो। आपको अपने बिजनेस की जीपी रेशियो मालूम होनी चाहिए। जीपी यानी कि ग्रोस मार्जिन। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपकी परचेज और मैन्युफैक्चरिंग के जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो माइनस करके क्या बचता है। अगर आपकी 30% की जीपी मैन्युफैक्चरर, अच्छा ट्रेडिंग करते हैं, कितने में खरीदा कितने में बेचा उसके बीच का डिफरेंस है। 10,000 रुपए का मोबाइल बेचा, 8,000 रुपए का खरीदा, 2,000 रुपए का ग्रोस प्रॉफिट है, तो 20% हो गया। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप भी अपनी जीपी निकालो। देखो मैं आपको फार्मूला दे रहा हूं, अपनी टोटल प्रोफेशनल फीस में से जो आप सैलरी पे करते हो ना, हालांकि सैलरी फिक्स कॉस्ट है, बट मेरा ये मानना है कि सर्विस प्रोवाइडर के केस में भी जीपी निकलनी चाहिए। जो लोग एक्चुअली इन्वॉल्व हैं एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के अंदर, आप पीएन की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी को नीचे रहने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी जितना एग्जीक्यूशन स्टाफ है, रेवेन्यू में से उनकी सैलरी माइनस करके जो बचा, तो यानी कि वो कितना परसेंटेज है। अब आप क्या करेंगे, जो कस्टमर से कलेक्शन आती है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर जीपी रेशियो आपकी 30% है तो 70 रुपए का इस्तेमाल मटेरियल परचेज करने में और डायरेक्ट एक्सपेंस करने में करना है। 30 रुपए का इस्तेमाल खर्चे करने में करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग स्टेशन, उसमें करना है। फिर जो बच गया है वो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट से आपका कैश रिजर्व क्रिएट होता है। जब बिजनेस में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट कैश रिजर्व क्रिएट हो जाता है, उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए आप नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे। नहीं तो इसका गैप पूरा करने के लिए आप लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, जिसको हम टर्म लोन कहते हैं। इसका मतलब है टर्म लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन है, उसके साथ में मशीनरी खरीदी। कम टर्म लोन लिया, प्रॉफिट का हिस्सा डाला, मिक्स करके मशीनरी कर दी, आपका बिजनेस, आपका कैश फ्लो एकदम टॉप रॉकेट की तरह ग्रो करेंगे और कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपने लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल कर दिया तो कंपनी का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा। आर यू वरीड? यस। क्या हुआ, हमने क्या किया, टर्म लोन ले लिया, टर्म लोन लेके सारे ऑपरेटिंग खर्चे कर दिए, प्रिंटिंग, स्टेशनरी क्या, सैलरी क्या, ऑफिस क्या, रेंट क्या, अभी लोन लिए जा रहे हैं, खर्चे किए जा रहे हैं, लोन लिए जा रहे हैं, खर्चे किए जा रहे हैं, और एक ऐसा विशियस सर्कल इकट्ठा हो जाता है जिसके बाद उसमें से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। आर यू एबल टू रिलेट विद मी ऑन दिस पॉइंट? क्लियर डिस्टिंक्शन ना होने की वजह से लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में खर्चों में डालने से बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आता है। इफ यू आर एबल टू रिलेट विद मी, प्लीज टाइप रिलेट इन द चैट बॉक्स if you are really able to relate that. Okay, okay, if you are watching on the Facebook live, आप कमेंट बॉक्स के अंदर रिलेट मेंशन करो, सो दैट जब आप रिलेट टाइप करते हो ना तो आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी के साथ में कनेक्ट करती है, एंड वी एक्सपीरियंस, एंड दैट एनर्जी इज ब्रिंगिंग आउट द नॉलेज directly from the universe which I have like experienced over a period of last few years. Okay, thank you very much for your participation. Now I come to the fifth and the most important part. The fifth part is immediate cash flow के लिए कैश रिजर्व। मैंने इसे कैश रिजर्व, आपको लगता है यार ये क्या बात करे जिगमन, यार इस लॉकडाउन के दौरान बिजनेस में अभी तो हमने स्टार्ट किया, ये कैश रिजर्व कैसे क्रिएट करेंगे? कैश रिजर्व क्रिएट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, जितनी कलेक्शन आपके पास आती है ना, जितनी आती है उसका एक छोटा सा परसेंटेज आप एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कलेक्शन आई, जितनी भी आई, लाख रुपए आई, 10 लाख आई, 1 करोड़ आई, 5 करोड़ आई, आप एक परसेंटेज डिसाइड कर लो, मे बी 0.5%, 1%, 2%, एनी परसेंट। जैसी कलेक्शन आई उसका आपने हर वीकली मंडे को उसको सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। यही कैश रिजर्व है। अगर आप साइंटिफिक मेथड जानना चाहते हो तो ये लो, जितने आपके नेट प्रॉफिट की रेशियो है, कौन सा नेट प्रॉफिट, जो आपकी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट फाइनल हो चुकी है, उसमें देखो आपका एनपी रेशियो क्या है। उस एनपी रेशियो का भी आधा, उस एनपी रेशियो का आधा, अगर आपका नेट प्रॉफिट रेशियो 8% है तो उसका आधा हो गया 4%। तो आप 4% अपनी कलेक्शन का सीधा
ट्रांसफर करना शुरू कर दो कैश रिजर्व के अंदर। आप देखोगे वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ सेपरेटली आपके पास इतना कैश रिजर्व क्रिएट होगा। जिन मेरे क्लाइंट्स ने मेरी ये सजेशन मानी थी, उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे को मैसेज देखे भेजे, मैं आपको व्हाट्सएप शेयर करूंगा। मतलब दे आर सो हैप्पी, क्योंकि मैंने उनसे स्ट्रेटजी शेयर की थी कि कितना कैश रिजर्व होना चाहिए। आपकी करंट इनकम के 12 महीने तक का कैश रिजर्व हो सकता है, 6 महीने कंटीजेंसी के लिए और 6 महीना अपॉर्चुनिटी रिजर्व के लिए। ओ माय गॉड। तो यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, यानी कि सिंपल एफडी में रख दे। यही तो ब्यूटी है कैश रिजर्व की, ये आपकी इमरजेंसी। अब देखो लग गया ना, लॉकडाउन आया, लेकिन इस कैश रिजर्व की स्ट्रेटेजी से क्या इसका कोई इंपैक्ट आया? बिल्कुल भी नहीं आया उन बिजनेसेस के ऊपर जो ये इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे थे। मैं खुद इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे 5 क्लाइंट ऐसे हैं नोएडा के अंदर, मैं आपसे नाम शेयर करूंगा उनका 1-to-1 के अंदर। उस कैश रिजर्व की वजह से उन्होंने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है। माय पॉइंट हियर इज दैट फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो यू नीड टू हैव अ कैश रिजर्व। तो 5 पॉइंट जो मैंने आपसे शेयर किए, लेट मी रीकैप इमीडिएटली विद यू। The first one is stock, second one is payment term, third one is budget, fourth one is long term versus short term, and the fifth one is cash reserve. So my dear friend, these 5 tips you start using and see the immediate impact on your cash flow of the business. Awesome. Guys, I just want to ask you one thing. How many of you feeling that you are getting massive value? Type massive value. Just type it, in the chat box, or if you're watching in the Facebook live, just comment it, massive value, because this is something, which Jagmohan is giving. This is truly phenomenal. It is required in this time for our businesses so much. ये इस समय need of the hour है हमारे हर business owner की. And that's the only reason I thought that no, we have to have Jagmohan right there. And once again, I acknowledge Jagmohan, for being there with us. And I acknowledge each one of you for watching and for, sparing out your precious time. You are certainly going to get even more value from here. Thank you so much for your participation. Over to you, Jagmohan. Yeah. So like this is how like you really need to manage your cash flow. So I would like to go to the second promise of the session that you have created. So do you want to ask something specifically for if you need anything, any clarity you need in first part, Ankur? No, I think that is something, it was so self-explanatory, and we'll keep say about 10 minutes FAQ in the end. So, I think that'll be super awesome to clear it out for everyone as well. Okay. Got it. Thank you. Now, you all are interested कि यार इसको मॉनिटर कैसे करें। कैश फ्लो तो जगमोहन तुमने बता दिया किस तरह से करेंगे, लेकिन इसको मॉनिटर किस तरीके से करें। अगर आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन है, तो माय आंसर टू योर क्वेश्चन इज टू मॉनिटर योर कैश फ्लो you need to have the world's simplest method. Now what is that? That simplest method is cash flow model. में ये भारी शब्द लग रहा है कि यार मॉनिटर करने के लिए कोई मॉडल लगाना पड़ेगा। इतना सिंपल मॉडल है, यानी कि इवन योर रिसेप्शनिस्ट, इवन योर बेसिक पर्सन, इवन योर बेसिक अकाउंटेंट कैन मैनेज दिस। उसमें क्या करना है, एक फॉर्मेट है, उसके अंदर आप देखेंगे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्या मेरा आज इनफ्लो आया, इसमें से कितना मुझे पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर करना है और कितना मुझे जीएसटी के लिए उसमें से अलग करना है। बाकी जो मेरे पास पैसा बचेगा उसको आप यूज करेंगे 3 जगह के ऊपर, इसेंशियल, प्रायोरिटी और पेबल। अब क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस प्लस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग प्लस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। आज का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब आप देखो कि एवरीडे मॉर्निंग आप आजकल बैंकिंग से ऑपरेट करते हैं सारा, और जो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या आप खुद हैं या जो भी आपका एग्जीक्यूटिव है, वो एवरीडे मॉर्निंग जब यूजर आईडी पासवर्ड डाल के कंपनी के अंदर अपने बैंक का बैलेंस देखता है तो कल तक की ट्रांजैक्शन क्लियर होनी चाहिए। दैट मीन टू से इफ यू मेक अ रिचुअल ऑफ योर कंपनी दैट एवरी मॉर्निंग सेल्फ और योर अकाउंटेंट 15 मिनट, कितना, सिर्फ 15 मिनट आपने इस कैश फ्लो मॉडल को अपडेट करना है। कौन सी ट्रांजैक्शन, यस्टरडे की ट्रांजैक्शन।
yesterday 2 ट्रांजेक्शन हुई है कि 5 ट्रांजेक्शन हुई है. The moment you will start looking at your cash flow for 15 minutes, आपको पता है बिजनेस ओनर हम सारा दिन कैश फ्लो के बारे में सोचते रहते हैं. जब मैंने अपने क्लाइंट के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में बोला कि आपने सारा दिन कैश फ्लो की चिंता नहीं करनी, अपने सिंपल एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट और किसी अकाउंटेंट की ड्यूटी लगा दो, उसका काम है हर रोज 15 मिनट कैश फ्लो को अपडेट करना है. और आपने अपने मोबाइल के अंदर, चाहे आप अपने घर में, चाहे आप कहीं भी हैं इस वर्ल्ड में, कहीं भी, लॉकडाउन के अंदर तो मैं मान रहा हूँ घर के अंदर हैं, उसके बाद लॉकडाउन खुलेगा, आप वर्ल्ड में कहीं भी हैं, एज्यूम कीजिए आप किसी बीच के ऊपर अपनी फेवरेट ड्रिंक के साथ में हैं, आपका मन कर रहा है कि मुझे अपना कैश फ्लो मॉडल देखना है, तो क्या करना है? जस्ट यू पिक अप योर मोबाइल एंड क्लिक हियर एंड योर कैश फ्लो मॉडल इज रेडी, बिकॉज डेली का इनफ्लो आउटफ्लो क्लोजिंग बचा हुआ है उस फॉर्मेट के अंदर. सो दैट वे यू आर एबल टू सी. अब उसमें करें क्या? हफ्ते में एक बार, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मीटिंग. 15 मिनट की अपने फाइनेंशियल कंट्रोलर के साथ में आपने मीटिंग करनी है, 15 मिनट की, एवरी वीक, एवरी मंडे, जिसके अंदर आप देखेंगे मेरे इनफ्लो और आउटफ्लो का इम्पैक्ट क्या आया. उसके बाद महीने में एक बार, अब ये जो डे, ये वीक बन गया, ऑटोमेटिक फार्मूला है, डे से वीक बन गया और वीक को ऐड करेंगे तो मंथ बन गया. मंथ के बाद एक बार पीछे मुड़ के देख लेना कि मेरे पिछले महीने की क्या परफॉर्मेंस रही, क्या तो मैंने बजट में सोचा था, क्या तो मेरा आया, क्या मैंने सोचा था जाएगा, क्या हुआ, अब मेरी इस महीने की स्ट्रेटेजी क्या है. तो मॉनिटर करना कैश फ्लो को इतना सिंपल है, डेली उसको अपडेट कराओ, वीकली 15 मिनट लगाओ और महीने का 1 घंटा लगाओ. तो बिजनेस ओनर, आपसे तो मैंने हफ्ते के 15 मिनट ही मांगे और महीने का 1 घंटा मांगा, उसको भी आसान कर देते हैं. मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि एवरी मंडे 10 बजे मैं अपना कैश फ्लो देखा करूंगा, तो 10 से लेके 10:15 तक आपने पहले मंडे, दूसरे मंडे, तीसरे मंडे को अपना कैश फ्लो देखा. अब चौथे मंडे को या अगले महीने के पहले मंडे को आपने 15 मिनट की जगह 1 घंटा देख लिया. अगर मान लीजिए महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 3 हफ्ते में तो आपकी हो गई वीकली रिव्यू 15 मिनट का. चौथे मंडे में क्या हो गया? 10 से 11 मंथली रिव्यू हो गया. तो आपको अलग से टाइम भी नहीं निकालना पड़ा. आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप फिजिकली ऑफिस में हैं, घर में हैं या कहीं पर भी हैं, आपके मोबाइल ने टिंग अलार्म वहां पे बजाया कि कैश फ्लो को देखने का टाइम हो गया. मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर, मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर. किसी का वेट अगर कम नहीं हो रहा ना. One thing I would like to add here, my trainer, I always remember T Half हमेशा ये बोलते थे और बोलते भी हैं, कि if anything, which you can't measure can never be improved, right? I mean, and I can correlate, Half की बात को मैं आपसे correlate कर पा रहा हूँ कि अगर आप किसी भी चीज को improve नहीं कर, improve करना चाहते हैं तो उसको measure करना start कर दो, right? Absolutely, Ankur. Thank you for adding that point. And absolutely. तो ये जो मेजरमेंट का कल्चर आपने ब्रिंग इन कर लिया, यस माय डियर फ्रेंड, ये रिलेट करता है आपके कैश फ्लो मॉडल को. So that way you are able to see your cash flow completely monitored, under control, and this cash flow, let this cash flow actually work for you. अब देखो, जो 5 पॉइंट मैंने पहले पॉइंट में बताए, अब उसको मैंने मॉनिटर करने का पॉइंट बताया, अगर आपने इसको कंबाइन कर दिया तो आप देखो क्या पावर क्रिएट होने वाली है. How many of you agree with me on this point? If you really agree with me on this point, please type agree on this point. Wow, it's awesome. I think we should definitely be agreeing, and Jagmohan, we would certainly इसको अगर power pack कर दिया जाए तो it will become a cash rich, it's a cash rich formula, I think. Absolutely, Ankur, absolutely. Like मैं तो ना खुद अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं और जितने बिजनेस ओनर है, लाइक जब मैं मीटिंग्स करता हूँ बिजनेस ओनर्स के साथ में पिछले 20 ईयर से, तो मेरे सामने ना पता क्या एक्सपीरियंस होता है, अंकुर, लेट मी शेयर विद यू. लाइक माइंडसेट, द माइंडसेट.
लाइक जिसकी अभी टर्नओवर 10 लाख की है और उसने बिजनेस स्टार्टअप किया है, वो मेरे से बात करता है, जगमोहन सिंह हम ना ऐसा प्लान कर रहे हैं, ये मेरा बजट है, इस तरह से करना चाहते हैं। अगले 2 घंटे के बाद मेरी नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल होती है एक एंटरप्रेन्योर से जो ऑलरेडी 2000 करोड़ के ऊपर है। वो अपने 5000 करोड़ का प्लान डिस्कस कर रहा है। फिर 5000 करोड़ वाले से बात हो रही है। फिर मेरी बात हो रही है जो 200 करोड़ की बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है। उन सब में एक चीज कॉमन है, जनमोहन इज कॉमन है उन सब के अंदर। और वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। वो पता क्या है, सबकी सक्सेस जो नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, उसका रीजन ही है कि उन्होंने बहुत प्रॉपरली कैश फ्लो को मैनेज किया हुआ है। इन 5 पॉइंट के साथ में कैश फ्लो को मॉनिटर कर रहे हैं। I think Jagmohan, one word which you all, which you taught me, I think 1.5 year back, which I would love to share. If you allow me, I can share that one word. वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. Can I? Oh yeah, please, So Ankur. Jagmohan told me one thing almost 1.5 year back, and that is called there is one thing called discipline. So he said, Ankur, discipline works or not works. I said yes. I remember it was almost 5 p.m. in the evening, and I was sitting in his office, and he told me discipline works or not works. मैंने कहा बिल्कुल it works. बोला in every area does it works or not works? मैंने कहा yes it works. बोला now let me ask you a simple question. मैंने कहा please ask. And then he said, guy, do you feel that financial discipline is important? मैंने कहा yes. So he told me one thing, Ankur, financial discipline is the key to your success. And I still do not forget, Jagmohan. I really feel grateful, and touched. When I'm recalling that moment, you're taking me back, and it's recalling me that coffee with, coffee of financial discipline. Absolutely, Ankur, absolutely. Like I have learned so many things from you. You are such an amazing soul that let me ask at this point of time one question from you. Can I ask one question from you? Oh yes, why not? Why not? See, cash flow is important. There is no doubt about that. For the success of business, it is required. But you can you really guide us? Can you really tell us, including all the participants who are there on this Facebook Live as well as here, like what are the secret? What are the secret to really take out the profit and take the business to the next level? And what are these secret hidden areas? I'm so excited to learn from you, Ankur. I'm so excited. Jagmohan, before I go on and jump into and deep dive into profit, I want to first acknowledge you, because मुझे लग रहा था कि शायद हम we will be unlocking the cash flow code, but आपने ना खाली cash flow को multiply नहीं करना सिखाया है, एक entrepreneur के time को multiply करना सिखाया है. कि आप किस तरीके से एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन रख के खाली 15 मिनट देखना है, कैश फ्लो मैनेज हो जाएगा. एक बिजनेस ओनर को जो फ्रीडम आप देने के मिशन पे होना, जगमोहन, दैट इज समथिंग, believe you me, it's very powerful, guys. It is very powerful. And now coming from that freedom, I'm going to touch upon a little bit, as you said, Jagmohan, I would be certainly asking everyone, all those the business owners who are there, I just want to ask you one very simple question. Which area in your business generates revenue? Just type it in the chat box and I want to listen it from you loud and clear, guys. I want to hear your participation. कौन सा ऐसा एरिया आपके बिजनेस के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट करता है? Your participation will certainly be important, guys. I think every one of you know that area. Marketing, yes. Anyone else, guys? Anyone else? There are many people right there in the house. I want to be just hearing from one of them. Sales, exactly. Very well said, guys. Sales and marketing, very rightly said. सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसा एरिया अपने अंदर जो अपने आप में एक कंपनी के अंदर डेफिनेटली ये सबसे ज्यादा रेवेन्यूज को ड्राइव करता है और बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया है हर बिजनेस ओनर का. ये एक सबसे कहीं ना कहीं एक पेन पॉइंट भी है, एक चैलेंजिंग एरिया भी है, बट येट एट द सेम टाइम ड्राइविंग एरिया भी यही है. प्रॉफिट भी यहीं से ड्राइव होता है, कैश फ्लो भी यहीं से ड्राइव होता है. तो हर चीज की जो एक ओवरऑल इस पूरे एरिना में जो सब पूरे बिजनेस को जो ड्राइव करता है वो डेफिनेटली सेल्स और मार्केटिंग है. अब अगर बात करूं सेल्स और मार्केटिंग की, बिलीव यू मी, नाउ इन दिस टाइम it's a very pandemic time which is going on. Believe you me, what I'm going to share with you is something which is very powerful. आज के टाइम पे ऐसे बदलते समय के अंदर जब हम इतना कुछ बदल रहा है,
अब ना खाली सेल्स एंड मार्केटिंग जिस तरीके से चल रही थी वो वैसे नहीं चलने वाली है. और today I'm going to share with you the effective, the pro, which I called it as pro sales and marketing. When I say pro sales and marketing, it means, my friends, profitable sales and marketing. क्योंकि अगर देखिए प्रॉफिट ही नहीं है ना, मेरे को बड़े अच्छे से याद है जगमोहन, आई रिमेंबर आई रेड अ बुक कॉल्ड प्रॉफिट फर्स्ट, यस, है ना, which you guided me. So वो वेरी प्रॉफिट वेरी फर्स्ट के बाद ना बड़ी एक जबरदस्त बुक है, और वहां से मुझे समझ में आया कि नहीं यार, सेल्स और मार्केटिंग का मतलब ना खाली 25 बंदों की टीम रखना या अपने अवेयरनेस को बढ़ाना नहीं है, बट उसका मतलब है सेल्स एंड मार्केटिंग वो करना जिससे कि आप एवरी मंथ अपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बैलेंस शीट को क्लोज करके, जो आपने मुझे सिखाया, और प्रॉफिट को आप असेस कर पाओ, देख पाओ, इनवॉइस बाय इनवॉइस क्या प्रॉफिट आया, कस्टमर बाय कस्टमर क्या प्रॉफिट आया, जीपी क्या आई. And guys, believe me, all the credit goes to this man who's sitting right in front of you because he's been super phenomenal. मैं बिल्कुल मतलब I am that kind of guy who used to hate finance, and believe me, मतलब मेरे को इस बंदे ने ना literally he's got me in love with finance today, and seeing all these numbers, though I'm not all a number guy, but yes, I'm absolutely a pure marketeer. I love marketing by passion, but he's really his contribution is tremendously phenomenal. Now, getting into these pro sales and marketing. So क्या आज के टाइम पे, ट्रस्ट मी, जो प्रो सेल्स एंड मार्केटिंग है ना, दिस वर्क्स इन एवरी बिजनेस, व्हिच मींस इट वर्क्स इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या स्केल ऑफ बिजनेस है, क्या टर्नओवर है, क्या प्रोडक्ट और सर्विस है. ये प्रो सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो आज हम शेयर करने वाले हैं ना, दैट इज गोइंग टू बी इमेंसली पावरफुल फॉर योर बिजनेस. नाउ आई वांट टू आस्क ईच वन ऑफ यू, जब भी हम एक सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करते हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग स्टार्ट होती है कहां से? इंक्वायरी से. इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंक्वायरी, एंड देन फ्रॉम इंक्वायरी इट गेट्स टू अ कन्वर्जन, व्हेन दैट इंक्वायरी बिकम्स अ कस्टमर. फिर वो और फिर उसके बाद जब वो कस्टमर बन जाता है, उसके बाद एक तीसरी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फेज रहता है उस कस्टमर को रिटेन करके रखने का, और वो भी ऐसे बदलते समय में बहुत बड़ा चैलेंज है. अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं, व्हाट चैलेंजेस इंक्वायरी लेवल पर भी सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत चैलेंजेस आते हैं, कस्टमर को कन्वर्ट करने में भी बहुत चैलेंजेस आते हैं, और उस कस्टमर को रिटेन करना, तो माय गॉड, दिस इज वेरी वेरी टफ टाइम, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. अब ऐसे समय के अंदर आपको क्या करना है, वो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करता हूं. देखिए, बहुत सिंपल है कि जो 1-to-1 स्ट्रैटेजी है ना, आज के टाइम पे आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं, या साइमल्टेनियसली यू हैव टीम्स, बहुत लोगों की बैक एंड टीम्स हैं, बहुत लोगों की फ्रंट एंड टीम्स हैं. अब आपको ऐसे बदलते समय के अंदर अपने पूरे सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान को एक बार ना बिल्कुल व्हाइट पेपर की तरह, उसको ब्लैंक पेपर की तरह देखना है, उस ब्लैंक कैनवास को पूरा का पूरा देख के, और उस प्लान को एक बार रिफ्रेश करना है. जैसे हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं ना जब कोई चीज हैंग हो जाती है, तो ये समय हमारा एक हैंग होने वाला पीरियड था. इस आई नो हमने अपने आप को बहुत रिफ्रेश किया है, बट अपने सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान को, पूरे के पूरे कस्टमर जर्नी को भी एक बार रिफ्रेश, एक रीबूट करने का टाइम आ गया मेरे दोस्तों. और आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये देखना है इंक्वायरी कहां से आती है, किन किन सोर्सेस से आती है, पहला. दूसरा, जब वो कस्टमर में कन्वर्ट होता है तो वो उसका कितना ड्यूरेशन है, कितना टाइम लगता है, और क्या चीजें हैं जो एक इंक्वायरी को कस्टमर में कन्वर्ट होने में हेल्प करती हैं आपके बिजनेस के अंदर. और तीसरा, जब एक कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है पहली बार, कितने लोग ऐसे हैं, बहुत से बिजनेसेस, मेरे अपने बिजनेस में से हो रहा था, हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि यार अगर वो कस्टमर चला गया तो चला गया, बट ये भूल जाते हैं कि कस्टमर को एक्वायर करने में कितनी कॉस्ट लगती है. लगती है, नहीं लगती है? एक कस्टमर को इंक्वायर करने में इतनी कॉस्ट लगती है, इतनी कॉस्ट लगती है कि विच यू कैनॉट इमेजिन. हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, बट एक बड़ी मैसिव कॉस्ट लगती है. एक स्टारबक्स की केस स्टडी है, उनकी एक कस्टमर को इंक्वायर करने, एक्वायर करने की कॉस्ट, जगमोहन जी, इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 12,500. और यही कारण है, आप देखिए कि कभी भी आप स्टारबक्स पे जाओ, आपको कॉफी पसंद आए, दे से ओके इट इज ऑन अस, एंड दे गिव यू वो 1 मिनट में आपको नई कॉफी बना के देते हैं. दे आस्क यू, दे आर सो वार्म, दे वेलकम यू लाइक एनीथिंग. द ओनली रीजन इज देयर कस्टमर सर्विस, देयर कस्टमर कनेक्शन. द रीजन इज क्योंकि वो कस्टमर की एक्विजिशन की कॉस्ट को समझते हैं. तो जैसे आज जगमोहन सर ने कैश फ्लो की बात करी, तो इंक्वायरी की जो बात है वो है
कस्टमर को एक्वायर करने का जो उसकी कॉस्ट को हमें हमें हमेशा कंसिडर करना है कि कितनी कॉस्ट लग रही है। दूसरा पॉइंट है कस्टमर को कन्वर्ट करने का, और जो तीसरा पॉइंट है कस्टमर को रिटेन करने का, उसको हम क्या करें कि किस तरीके से वो नचर रहे। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बहुत से लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, what all challenges are they facing? I want to hear it from you loud. क्या लग रहा है जगमोहन सर, आपको क्या लग रहा है जगमोहन जी कि क्या चैलेंजेस उनको फेस हो रहे हैं? जो आप भी इतने बिजनेस ओनर से बात करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ भी यहाँ पर हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा क्या चैलेंजेस है जो सेल्स के अंदर अब आपकी सेल्स टीम को आपको फील हो रहे हैं? बिकॉज वो चैलेंजेस आपको जब तक पता नहीं लगेंगे ना, तो अवेयरनेस में आना, एंड बिलीव यू मी, वो सारे चैलेंजेस को आज हम अभी सॉल्व करेंगे अगले 10 मिनट में। वी विल डेफिनेटली सॉल्व मोटिवेशन। वेरी राइट, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि मोटिवेशन जो है, किस तरीके से अपनी टीम को मोटिवेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाइस, this is something which is going to be very phenomenal for each one of you, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग आपकी कंपनी में प्रॉफिट सेंटर है, सबसे बड़ा प्रॉफिट सेंटर है। और ऐसे टाइम के अंदर आपको अपनी टीम को बहुत कॉन्स्टेंटली, जैसे मोदी जी को देखिए आप, वो अपने आप में एज अ लीडर कितने बड़े एग्जाम्पल हैं। मतलब वो कुछ भी हो जाए, हर हफ्ते हर महीने, every time he is coming on camera, coming on live, motivating us. आपकी वजह से हो रहा है, आप लोगों ने ये किया, आप लोगों की वजह से हो रहा है, he is motivating। आपको भी ऐसे ही अपनी टीम को मोटिवेट करना। आप समझना ये टाइम उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। हमारे लिए अगर खुदा ना खास्ता आप एक चीज समझिए, कोई मिस हैपनिंग होती है तो हम हैंडल कर सकते हैं, हमारे पास कैश रिजर्व्स हैं। उन बेचारों के पास कैश रिजर्व्स भी नहीं है। राइट जगमोहन जी, आई थिंक दे आर गोइंग। क्या आपको फील होता है, जो मतलब मैं अपने एम्प्लॉइज को अगर मैं देखता हूं, और व्हाट डू यू फील अबाउट इट? ये वेरी ट्रू। ये जो कैश रिजर्व की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमी कंडीशन ये दिखाती है कि लोगों के पास आधे महीने से 1 महीने तक ही कैश रिजर्व था। तो ये एनालिसिस है ओवरऑल इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर। वी नीड टू स्टैंड बाय देम। एब्सोल्युटली, वेरी राइट सेड जगमोहन सर। एंड जगमोहन जी, एक चीज यहाँ पर और मैं ऐड करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स एंड मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, कि 1-to-1 जो अभी तक आपकी भले ही चाहे टीम कर रही थी या आप कर रहे थे, वो सेल्स एंड मार्केटिंग का पार्ट जरूर था, बट वो नॉर्मल सेल्स एंड मार्केटिंग थी। अब जो टाइम आ गया है वो है प्रो सेल्स एंड मार्केटिंग करने का, विच मींस आपको अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल चेंज करना है। चेंज करना है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंपल है, आपको ये देखना है कि क्या मीडियम मैं यूज करूं जिससे कि मेरी रीच है वो कस्टमर तक पहुंचने की, वो कम से कम टाइम लगे और मेरी रीच ज्यादा से ज्यादा हो। और आपको टेक्नोलॉजी को बहुत 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 ज्यादा अब प्यार करना पड़ेगा। अब देखिए, एक चीज समझना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी टीम को इस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है कि फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ लीडर, एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि आप खुद टेक्नोलॉजी को लव करना स्टार्ट करिए। हैव सीआरएम्स इनटू योर बिजनेस, राइट? गेटिंग अपने लीड्स को मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिए, सिस्टम्स को मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिए फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। और जैसे ही आप वो करेंगे, डेफिनेटली यस, आपकी टीम को धीरे धीरे मोटिवेट करके उन सिस्टम्स के ऊपर लेकर आइए। अगर वो जिस तरीके से, अगर वो फोन पर कॉल्स करते हैं तो आप फोन पर कॉल्स करने की बजाय उनको मोटिवेट करिए कि वो वीडियोस बना के अपने कस्टमर को भेजें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि प्रोस्पेक्टिंग में जो उनका टाइम अगर पहले इतना लगता था, आप देखिए अगर एक नॉर्मल सेल्स गाय है वो पहले क्या करता था, बिजनेस अपना एक झोला उठाता था और वो जाता था, मैं एक सैंपल लेकर आया हूं, मैं एक सैंपल लेकर आया हूं, और ये वो करता था। अब मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, क्या आपको लगता है वो स्ट्रेटजी काम करेगी? जगमोहन सर, आपको लगता है वो स्ट्रेटजी काम करेगी? आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं काम करेगी, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली। मतलब अब वो विद चेंजिंग टाइम अगर वो स्ट्रेटजी बदलनी है तो आपको अपने जो सेल्स एम्प्लॉइज हैं, जो आपको अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग करने की स्ट्रेटजी है, उसकी बड़ी एक हैवी 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 नीड है, बिलीव यू मी। एंड वो जितनी हैवी दिखती है ना, वो उतनी इजी है, बट हमने अपने ब्रेन के अंदर क्योंकि उसका लोड इतना ज्यादा बना रखा है तो वो हमें हैवी लगती है। बट अगर हम उसको इस इंटेंशन से देखें तो यहाँ पर ना मेरे एक मैनेजमेंट गुरु हैं जगमोहन जी, उनका ना एक कोट मेरे को याद आ रहा है, उनका नाम है पुनीत। वो हमेशा ये बोलते थे और आज भी वो हमेशा मेरे को बोलते हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडेड
we don't see, provided we don't see problem in the solution. तो आपको बस ये समझना है, ऐसे बदलते समय के अंदर आप इसको अगर एक अपॉर्चुनिटी में देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहला टेक्नोलॉजी से लव करना है। 1-to-1 को इफेक्टिव करने के लिए आपको वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने कस्टमर को जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ते हैं उन सबके सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और एक बार नोट करके 1 महीना लगा के उन सबकी वीडियोस अपने एक ट्राइपॉड को लेकर रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि आपके सेल्स एम्प्लॉइज भी उनको यूज कर पाए, ना उनका समय बर्बाद हो, ना आपके कस्टमर का बर्बाद हो, और ना ही आपका बेफिजूल में आपके पास कॉल आते हैं आपके अपनी कस्टमर की के जब कॉल्स आते हैं वो बेफिजूल का टाइम आपका वेस्ट होता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको कस्टमर से, जी 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 हाँ हाँ उसमें हो सकता है, हाँ सर उसमें हो सकता है। आपको पता है आप उनकी एक बार वो वीडियो बना दो तो आपका सेल्स एम्प्लॉय भी जिंदगी भर के लिए फ्री और आप भी जिंदगी भर के लिए फ्री। आपका टाइम फिर कहां लगेगा? वो वहां लगेगा जहां आपको कैश फ्लो को मैनेज करना है 15 मिनट, या रिजर्व्स को मैनेज करना है, जिससे आपके कंपनी में प्रॉफिट जनरेट होंगे, या नई सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज में आपको अपना दिमाग लगाना है। अभी मैं आगे और सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को टच अपॉन करूंगा अगले 5 मिनट में। बहुत 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 सारे गोल्डन नगेट्स हैं जो दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे आपसे शेयर करने हैं। और 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-to-1 को अब आपको जूम मीटिंग से इफेक्टिव करना है, वीडियोस बना के इफेक्टिव करना है, प्रोस्पेक्टिंग करने हैं उसको वीडियो से ज्यादा यूज करना है, और ज्यादा से ज्यादा जितनी इंक्वायरी फ्लो अपने बिजनेस के अंदर आप बढ़ाते चले जाएंगे वीडियोस को यूज करके, बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, जब वो कस्टमर आपको आता है, आपके पास प्रोस्पेक्ट आता है, इंक्वायरी आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ना आपके साथ साथ आपके कंपटीशन पे भी जाता है, है ना? जब वो वहां जाता है तो वो देखता है कि किसका पलड़ा भारी है। अब पलड़ा भारी कैसे होता है? बड़ा सिंपल है, अगर आपको अपने बिजनेस का पलड़ा को भारी करना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने कस्टमर की रिसर्च को, ये गोल्डन नगेट है, रिसर्च को चीपर, बेटर और फास्टर कर दो। चीपर, बेटर एंड फास्टर। बड़ा सिंपल है जगमोहन जी। हमने क्या किया था आज से ना 5 साल पहले ना अपने बिजनेस में ना, मेरे बिजनेस की अवेयरनेस नहीं थी प्रोडक्ट की, और बड़ी दिक्कतें आई। पूरे में एक डीलर के पास जाऊं वो कहे प्रोडक्ट नहीं पता, मैं दूसरे के पास जाऊं वो कहे हमें नहीं पता, वो तीसरे के पास जाऊं तो वो कहे ये प्रोडक्ट तो चलेगा ही नहीं। मैं बड़ा डिमोटिवेट, मैं गया 10 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया, ये कह रहे प्रोडक्ट नहीं चलेगा, प्रोडक्ट नहीं चलेगा। अरे हमने एक वीडियो बनाई, उसके बाद कभी ना मुड़ के ही नहीं देखा जगमोहन जी। एंड बिलीव यू मी, आज वो 150-200 वीडियोस के ऊपर 10 मिलियन की व्यूअरशिप हो गई, और कभी नहीं सपने में सोचा था लोग वीडियोस को देखेंगे। B2B प्रोडक्ट मतलब आप बताओ, होना मतलब होता है ना कि प्रॉफिट की वीडियो कोई देखेगा, कैश फ्लो की वीडियो कोई देखेगा। मुझे लगता था कि B2B के प्रोडक्ट की वीडियो कौन देखने जाएगा, बट अगर 1 करोड़ लोगों ने देखा है तो कोई रीजन होगा। तो अगर हमारे प्रोडक्ट के लिए वो काम करता है तो आपके प्रोडक्ट के लिए भी वो काम करेगा। बिलीव मी, आपकी इंडस्ट्री के लिए वो काम करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज करेगा। जितने भी क्वेश्चन है ना आप सबके मैं सारे एड्रेस करूंगा आखिरी में। आखिरी के 15 मिनट हमने सिर्फ एफएक्यू के लिए रखा है, Q&A के लिए रखा है, एफएक्यू के लिए नहीं। और बहुत 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 मजा आने वाला है। और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपने अपने कस्टमर की रिसर्च को चीपर, बेटर और फास्टर कर दिया, उसका पलड़ा आपके प्लेटफॉर्म का भारी हो गया, आपने अपनी वेबसाइट पे सारी वीडियोस लगा दी, यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस लगा दी, तो आपके कस्टमर की रिसर्च इजी हो जाएगी। वो आपको अपने कंपटीशन से जब भी देखेगा ना, तो आपको इस निगाह से देखेगा, आप उसकी निगाह में एक परसीव्ड एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब मुझे आप सबसे पूछना है, कितने लोग चाहते हैं कि आप अपनी कस्टमर की निगाह में परसीव्ड एक्सपर्ट बन जाएं? अगर चाहते हो तो टाइप करो एक्सपर्ट। मैं तो मतलब मुझे तो बड़ा क्लियर है कि यार जैसे आप एक्सपर्ट बने नहीं ना, आपके बिजनेस के अंदर 100% आपको लोग अलग निगाह से देखने लगते हैं। ऐसा मेरे बिजनेस में हुआ है 100%, तभी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। कोई पढ़ी लिखी किताब में पढ़ी हुई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, कोई यूट्यूब से सुनी स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा। खुद स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके जो चीज समझ में आई, काम करी, 10 में से सारे बंदे रखे, 25-25 बंदों की टीम रखी, 15-15 लाख रुपए महीने की उनको सैलरियां दी, सबको हटा दिया, फिर एक स्ट्रेटजी पकड़ी कि यार यही एक सही स्ट्रेटजी है, वीडियो वाली, यही काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, टका है। जगमोहन जी एक बात बताओ, आपने जब से वीडियो स्टार्ट की है, आपको वेबिनार्स में, वीडियोस में हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही? बहुत अमेजिंग हेल्प मिल रही है। मतलब तो ये हर बिजनेस के लिए काम करती है नहीं करती जगमोहन जी? यस, 100% काम करती है, 100%।
भाई मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई कि आजकल लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे क्यों ज्यादा ध्यान दे रहे हैं पार्टनरशिप की जगह। तो वो टैक्स रेट का चक्कर था। मेरी एक वीडियो के चक्कर में तो इतनी मेरे पास इंक्वायरीज आई, इतनी कम्युनिकेशन हुई जो शायद पूरे 6 महीने में नहीं होती थी। वो एक वीडियो ने कमाल कर दिया। मतलब दैट इज द काइंड ऑफ पावर। Awesome, awesome. Thank you so much, Jagmohan. And one thing which I would like to add more is the nurturing part. अब क्या होता है ना, जब कस्टमर की, एक कस्टमर तो हमने बना लिया, बट उसको नचर कैसे करना है? तो नचर कैसे करना है, आपको ये देखना है आपका कस्टमर को क्या चाहिए और आपके कस्टमर के कस्टमर को क्या चाहिए, है ना? तो अगर आप उसको समझते हुए वीडियोस बनाएंगे और उसको नचर करते रहेंगे, उसको वो रिजल्ट आपकी वीडियोस देती रहेंगी जो उसको चाहिए, तो जगमोहन जी मुझे एक बात बताइए, वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली डेफिनेटली वो होगा। डेफिनेटली यस। एग्जैक्टली। और जगमोहन जी एक स्ट्रैटेजी जो बहुत मैसिवली सुपर पावरफुल है, वो भी मैं आज सबसे शेयर करना चाह रहा हूं, कर दूंगा अगर आप कहो तो? Oh yes, yes, yes. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो ऐसे बदलते समय के अंदर ना, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको प्रॉमिस किया, जगमोहन जी ने भी प्रॉमिस किया है कि हम प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हो। देखो ये तो गया 1-to-1, चाहे आप करें चाहे आपकी टीम मेंबर करे, बट इसके अंदर ना एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ना 1-to-1 की स्ट्रेटेजी है, अच्छी है, उसको आपको जैसे पहले नॉर्मल कर रहे थे कॉल करके मिलने के, अब वो तो करने, वो ना करके आपको उसको वीडियो फॉर्मेट पे ले आना, चाहे जूम की तरफ से लाएं, चाहे आप उसको वीडियोस बना के पहले दे रहे फिर जूम कॉल पर आए। ये तो गया 1-to-1। अब आपको एक और स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, वो है 1-to-many। आपने वो देखी थी रामायण महाभारत? उसमें क्या होता था ना, एक तीर निकलता था, उसके मल्टीपल तीर हो जाते थे। याद है ना वो मल्टीपल तीर होना? वो मल्टीपल तीर। अब आपको क्या करना है, आपको ना सिर्फ एक बात समझनी है, आप अपने बिजनेस के अंदर एक नीश पकड़ लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से काम करता हूं, तो मैंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, मान लीजिए मेरे पास 500 गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का डेटा है। अब अगर मैंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया और उनको बुला के एक वेबिनार करा, अब वेबिनार करने में के ना दिमाग में, आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि यार क्या कुछ बेचना है हमें उनको? बताऊं इसका आंसर बोलूं? बिल्कुल भी नहीं बेचना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है उनको बेचने की। तो क्या करना है जगमोहन जी, क्या करना है? सिर्फ एक चीज करनी है, वैल्यू, वैल्यू और वैल्यू। अब वैल्यू किस पॉइंट पे देनी है? बड़ा सिंपल है, जो भी उनको चाहिए रिजल्ट, उससे रिलेटेड आपको वैल्यू ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इस समय ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन जल्दी कैसे करें, और अगर वो जल्दी कंप्लीशन करने से उनकी रेटिंग प्रोजेक्ट की बेटर होती है। अगर इसके लिए जगमोहन जी, मैं अगर उन 500 कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक एक पर्सन को, एक्सपर्ट को ले आऊं, जो जैसे अंतरिक्ष है, जो हमारे फ्रेंड है, अगर उनको हम ले आए और मान लीजिए अगर वो सिर्फ ये गाइड करें हाउ टू कंप्लीट योर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फास्टर, तो क्या उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। कितने लोगों को लगता है कि उससे उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी? टाइप करिए वैल्यू। I would love to listen out from you guys. This is immense powerful session. Trust me, बहुत मजा आ रहा है, बहुत 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 मजा आ रहा है। And believe me, it is going to be very powerful session, in very powerful strategy. Sorry for session. It is going to be a very powerful strategy. अगर आप अपने बिजनेस में इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, तो आपका कस्टमर आपको एक परसीव्ड एक्सपर्ट की निगाह से देखता है। और जब वो जिस दिन से आपको वो परसीव्ड एक्सपर्ट की निगाह से देखने लगता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है। तब वो लड़ाई 1-2 रुपए की नहीं रह जाती। तब वो आपसे बात, उसके दिमाग में ये चलने लगता है कि मैं इसके साथ कैसे बिजनेस कर सकता हूं। आप नहीं सोचते कि मैं इससे कैसे बिजनेस कर सकता हूं, तब वो सोचता है कि यार ऐसा क्या रीजन है जो मैं इससे बिजनेस नहीं कर रहा। Are you getting my point? अब जगमोहन जी ये बात बताइए, बिल्कुल टर्न अराउंड है या नहीं है? पूरा टर्न अराउंड है, पूरा। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा 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 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस बदलते समय के अंदर, जैसे जैसे आपने
ये लगाने की अब आदत लगा ली है, ऐसे ही आपको अब अपने बिजनेस की सेल्स एंड मार्केटिंग को प्रो सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, 1-to-1 को इफेक्टिव बनाना है, 1-to-many की को रीच करने की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है। और अगर इस पूरे के अंदर आपको कभी भी कहीं पे भी कुछ भी लगे कि आपको कोई भी इश्यू आ रहा है, तो जगमोहन जी एक गोल्ड एक एक बोनस अभी देना चाहूंगा, सबको दे दूं? यस प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं अभी ना एक काम कर रहा हूं आप लोगों के सबके लिए, एक ना लिंक दे रहा हूं आपको। एक वेबिनार है 2 जून को, इन विच आई एम गोइंग टू हेल्प ईच वन ऑफ यू कि किस तरीके से इन सारी 1-to-1 और 1-to-many की स्ट्रेटजीज को पावरफुली आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं टू जनरेट मोर कैश एंड टू इंक्रीज योर प्रॉफिट्स। आई थिंक दैट विल बी इमेंसली पावरफुल फॉर ईच वन ऑफ यू एज अ बिजनेस ओनर। If you want that, if you want more profits in your business, then definitely yes, this is a must attend webinar for you, and it's absolutely free, and this works even if you think it you know, will it work यार, ये पैंडेमिक टाइम में वर्क करेगा नहीं करेगा, मेरे बिजनेस में वर्क करेगा नहीं करेगा? नहीं यार, मेरे बिजनेस में तो कोई वीडियोस नहीं बनाता है, तो मैं अंकुर के बात से इतना कोरिलेट नहीं कर पा रहा। नहीं बनाता है ना, तो आप समझिए आप गोल्डन पीरियड में है। गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिए, बिल्कुल मिस मत करिए। बदलते समय के साथ हम सबको बदलना है, अपनी टीम्स को मोटिवेट करना है। एंड आई एम एब्सोल्युटली सो फिनोमिनली टच्ड, moved and inspired to have Jagmohan right over here and to have each one of you, and it feels an immense privilege to add massive value to your life. Thank you so much, and now over to Jagmohan. Such a valuable insight you have given, Ankur. Like discussion में ना, मतलब पता नहीं लग रहा है कि समय कैसे कैसे उड़ता चला जा रहा है, समय का तो ध्यान ही नहीं रहा। such a valuable information you have provided. तो अब हमारे participant भी हैं, so see if any of the participant you have any question relating to cash flow or sales, you can ask in this chat box. If you have any question, we are here to reply to any of your question. Absolutely. It will be a great honor and pleasure. And in the meantime, like while you are typing or asking your question, like so if you want to get a more and more value, I have taken out a specific 1.5 hour 90 minute एक मैं मास्टर क्लास लेकर आ रहा हूँ कैश फ्लो के ऊपर। कंप्लीटली वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप उसको रजिस्टर करना चाहें तो अभी उसके अंदर टाइम है। सो इट विल बी ऑन 14th of June। तो उसके अंदर तो मैं आपके लिए अमेजिंग एस्पेक्ट लेके आ रहा हूँ। दोज हु वांट टू रजिस्टर, मैंने अभी यहाँ पर लिंक शेयर कर रहा हूँ, एंड यू विल बी एबल टू सी दिस लिंक। Awesome. I think that will be phenomenally useful for each one of us, I think, Jagmohan, and that will be great, brilliant insight. इसमें आपने इतनी वैल्यू ऐड कर दी 1.5 घंटे में, तो आप अगर कैश फ्लो में पता नहीं हमें डीप डाउन ही करवा दोगे। I think awesome. Truly thankful to you and every participant here. Truly thankful. I think some of you know, some of the participants had some previous questions, you know, which are there, and let me just pull that out, because that will be something which is important. So not everything can be predicted when drawing our budgets. How to deal with budget items in which there are element of uncertainty? Yes, over to Jagmohan. Okay, so your question is not everything can be predicted. So when you say not everything can be predicted, तो यहाँ पर जब आप बजट की टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, उसके अंदर क्या होगा कि आपका एक बेस्ट सिनेरियो है, नॉर्मल सिनेरियो है, बैड सिनेरियो और वर्स्ट सिनेरियो है। ये 4 सिनेरियो तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब क्या होगा, ये जो हमारा बजट बनता है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। तो मैंने क्या बोला, आपको मंथली रिव्यू करना है। अब ये 1 महीना खत्म हो गया, अब मान लीजिए मई का महीना खत्म हो गया, आप जून के फर्स्ट मंडे को मई को रिव्यू करेंगे। जब मई को रिव्यू करेंगे तो उस बजट का नाम पता क्या था, वर्जन 1.0। अब जब आपने जून में उसको रिवाइज किया तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, बदले बदले हालात के अंदर आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, आप कुछ चेंज हुई, कंडीशन चेंज हुई, तो आप उस बजट के अंदर क्या करने वाले हैं, चेंजिंग करने वाले हैं। मेक अ कॉपी एंड इट विल बिकम वर्जन 1.1। अब फर्स्ट मंडे ऑफ जुलाई के अंदर 1.3, फर्स्ट मंडे ऑफ अगस्त के अंदर 1.4। तो दैट मीन टू से बजट की यही खासियत होती है कि हम
जब फ्यूचर का डाटा पास्ट बन जाता है तो हर महीने हम उसको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपग्रेड करते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बजट। और अनसर्टेनिटी बड़े इजीली टेकअप हो जाती है। और जब आप कंसिस्टेंटली यूज करना शुरू करेंगे ना इसको, आई एम टेलिंग यू आपको ना प्यार हो जाएगा। एग्जैक्टली बहुत प्यार होने वाली चीज है ये। अब क्योंकि बिजनेस की पूरी, आई थिंक जगमोहन, बिजनेस की आपको पता क्या है, आप ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ना ऐसे उठ के ना ऐसे बिजनेस को देखने लगते हो अपने, मतलब आप मैक्रो, मतलब ऐसा लगता है आप एलिवेट हो गए और आप एक बिजनेस को एक अलग व्यू से देखने लगते हो, मतलब दैट इज समथिंग Absolutely. व्हिच आई And you are not like predicting future, you are creating future. एम, Ah, या एब्सोल्युटली। amazing. और सर्टेनिटी ना अपने ब्रेन में इतनी क्लियर हो जाती है कि नहीं यार अभी मैं एक्सपैंड नहीं कर सकता, अभी मुझे 3 से एग्जैक्ट 4 महीने लगेंगे इस एक्सपेंशन प्लान को टेकअप करने के लिए, मतलब ये क्लैरिटी होती है। वाह। और वीकली रिव्यू, मंथली रिव्यू आपके अंदर ना एक इंटेलिजेंस बिल्टअप करता है कि हाँ हाँ, पिछली बार मैंने ये सोचा था लेकिन इन इन कारण की वजह से ये नहीं हुआ था, अब मुझे इन चीजों का पूरा ध्यान रखना है। Awesome. एंड आई एम श्योर दैट योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। One more question, which is there, which is related to your topic, and that is whether this model tell us about the profits also. क्या ये प्रॉफिट भी बताता है जो मॉडल है? ओ यस, इस कैश फ्लो मॉडल के अंदर मैं अपनी सबसे प्यारी चीज को कैसे छोड़ सकता हूँ, फाइनेंशियल समरी। तो फाइनेंशियल समरी इज द पार्ट ऑफ दिस कैश फ्लो मॉडल, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। Wow, wow, awesome, awesome. And will that be shared in terms of बिल्कुल crisp form में वो बताया जाएगा 90 मिनट्स की मास्टर क्लास में? ओ यस, उस मास्टर क्लास के अंदर ना केवल मैं एक एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, बल्कि आपको उसका फॉर्मेट भी देने वाला हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। Oh my God, that is going to be phenomenally amazing, amazing, amazing. That is so amazing, so amazing. And there's another thing is competitive atmosphere due to cost among different brands, what to do and introduce a new brand, but we are confident on our product quality, what to do. This is a business problem for us. Please comment on that. So I think, this is something which one of our partners, Anis, is, question. And बहुत एक relevant question है कि क्योंकि competitive brands के अंदर किस तरीके से अपने आप को ahead करना है। बहुत सिंपल है, आप अपने आप को एज पार्टनर, यू हैव टू टेक yourself a stand to become a perceived expert in your territory, and that is something, if you will start doing that, मतलब आप अगर अपने एरिया के अंदर, मान लीजिए आप केरला में हैं और केरला के अंदर if you start creating videos for the applications you do, या for example for whatever works you do, and you start becoming, you start interviewing more and more people, more architects, becoming more, you start reaching to one to many. I think that's the only way, without having more sales employees and without bearing the cost of it, you can become a perceived expert, and yet you can have a complete command of sales and marketing without giving or listening to the dhamki of sales and marketing people ki sir main na kal subah se nahi aa raha. Believe me, Jagmohan, you would not believe, I just got a call from 2 people in the last week. In fact, one of them, Sachin, I'm interviewing him tomorrow, and you would not believe, one of another person who attended the session of Nano Video Blueprint, he told me one thing कि अंकुर यार अब ना वेबिनार करके ये एक पावर आ गई है कि वेब, मतलब he never made a single video, and not even making a single video to he started creating webinars, and उस one to many की स्ट्रेटजी से ई रिक्शा बेचते हैं वो। इमेजिन करिए, ई रिक्शा बिजनेस के अंदर नाउ ही इज डूइंग वेबिनार्स वन टू मेनी, एंड वो वन टू मेनी इफेक्टिवली काम उनके बिजनेस में इस तरीके से कर रहा है कि उन्होंने बोला यार अब ना ऐसे लगता है पूरी सेल्स को कंट्रोल करने की पावर मेरे हाथ में आ गई है, मैं अपने सेल्स एम्प्लॉइज को लीड दे रहा हूं और वो सिर्फ टाइम फिक्स कर रहे हैं कम्युनिकेशन का मेरे लिए। दिस इज द पावर। Oh, wow, amazing. I think the time is already done. Perfect, guys. Thank you so much. I am really grateful to each one of you. Once again, I would like to acknowledge each one of you for coming up, for showing up, for being here on attending this session. It means a lot. I hope that you must have got a lot of massive value, and both of us have given the masterclass sessions. If you at any way you want to attend it, there definitely the links are there. They will be posted on the Facebook Live as well. And thank you so much for learning and for understanding it to the core. Once again, I acknowledge Jagmohan for
being there. Thank you so much, Jagmohan, for sharing your precious knowledge on cash flow. It was phenomenally golden nuggets, gold mine, which you gave to us. We will certainly be using them a lot. Thank you so much once again. God bless. Stay safe, stay home, stay healthy. Bye-bye. Bye. Thank you.